Hello. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बस इस ट्रिक्स को समझ लिया, ये तरीके को सीख लिया, सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हमें ये सारे मिल गए हैं, 5 आइटम मिल गए हैं। इसको हमने ऐड कर दिया तो 520 करोड़ आ गया आंसर। अब इसको हम लोगों को क्या बनाना है, NNP एट FC बनाना है, ये बनाना है। तो ये निकाल लिया है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए बस D से N बनाने के लिए प्लस NFI करना, बस यही तरीका है। तो हम लोग उसमें क्या है, यहाँ पे ये भी वैल्यू दिया हुआ है, दिखा है, तो इसमें 10 कर देंगे तो 530 करोड़, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है NFI का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको सारी चीज़ें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, क्रिम्प वाला जब याद बस क्रिम्प CRIMP क्रिम्प पे फोकस करिए, सब बन जाएगा। तो आपका C दिया हुआ है, R दिया हुआ है, IPM सब दिया हुआ है, सबको ऐड करना। मगर यहाँ पे जो हम लोग को हमेशा ऐड करना होता है ना, बड़ा छोटा से बड़ा बनाते ऐड करना होता है, तो हम लोग प्लस NFI करते हैं, मगर यहाँ पे वैल्यू ही आपका -10 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग मान लीजिए ये सारे वैल्यू को लिख के हम लोगों ने पूरा प्लस किया, ठीक है, आपका ये सारे वैल्यू को लिख के हमने जो भी है ये सारा प्लस कर दिया, ठीक है, उसके बाद प्लस NFIA ही करना होता है, NFIA, ठीक है। तो मगर ये क्या है, ये प्लस किए मगर फिर -10 कर रहे हैं, ब्रैकेट में रखेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका 440 करोड़ हो जाएगा आपका नेशनल इनकम। ठीक है, इसको बस मैंने बताया है कि वैल्यू क्या है, आपका आया हुआ है निगेटिव में, और अगर वैल्यू आपका निगेटिव में आता है तो हमारा नेशनल इनकम
निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि जो NFIA का जो वैल्यू है, मतलब क्या मैंने कहा था, एक फॉर्मूला है ना कि रिसीव्ड इनकम, दूसरी कंट्री से आपने जो इनकम रिसीव किया उसका वैल्यू बड़ा होगा, पर आपने बहुत सारे सामान दूसरे से लिया भी तो है, गुड एंड सर्विस दूसरी कंट्री से लिया, वो जो आपने पेड किया, जो पैसा उसके बदले दिया, ठीक है, जैसे जो रिसीव्ड हुआ, आपका रिसीव्ड हुआ, ठीक है, उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आता रहा, क्योंकि आपको ये इसलिए वैल्यू रिसीव हुआ है कि आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो दूसरी कंट्रीज़ को दिया है, ठीक है, उसके बदले में लोग आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने रिसीव्ड किया इनकम जब रिसीव्ड हो गया तो ये है, मगर आपको भी तो गुड एंड सर्विसेज चाहिए होंगे, तो आपने उसके बदले दूसरी कंट्रीज़ को पैसे दिया, तो पेड, तो R माइनस P, मैं ये शॉर्टकट में बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता रिसीव्ड इनकम और पेड इनकम है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो NFIA होता है। मान लीजिए कि इसका वैल्यू रिसीव जो हमने किया 20 रुपये की है, मैं समझाने में कह रही हूँ, और हमने जो दूसरे से सामान लिया उसके बाद हम लोगों को हमने पैसे जो पे किए हैं वो 10 रुपये किया है, हमारा वैल्यू फिर भी 10 आ रहा है, तो मतलब क्या पॉजिटिव है ना, तो मतलब पॉजिटिव है तो हमारा NFIA बड़ा है, तो हमारा नेशनल इनकम भी बड़ा है। मगर अगर ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब यही है ना कि हमने क्या बोलते हैं, पैसे कम लिए हैं, मतलब जो हम लोगों ने गुड एंड सर्विसेज दिया है ना वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना दे के हम लोगों ने बदले में उनसे गुड एंड सर्विसेज लिए हैं, मतलब हम लोगों ने पैसे ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ को दिए हैं मगर इनकम दूसरे कंट्री से कम लिए हैं, तो हमारा जो दूसरे कंट्री से जो पैसा कमाने का जो प्रोसेस है वो निगेटिव में है, तो इसलिए यहाँ पे NFIA माइनस आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ को आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या गिवन है आपको मैंने एक और बताया था ना, RIP का बताया था, RIP, रेस्ट इन पीस, आपको शॉर्ट में याद करना पड़ा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ना गिवन हो उनके बिहाफ में शायद मतलब उनके बिहाफ में डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो, ये चीज़ गिवन हो, तो इसमें ये तीनों ऐड होता है, तो इसका वैल्यू ये हो जाता है। तो ये और सिंपल है, आपको यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ऐड कर देना है, जो आपका NDP एट FC निकल जाएगा, NDP एट FC, क्योंकि जो इनकम मेथड है उसको NDP एट FC कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको सीधा ये वैल्यू ही दिया रहेगा इस नाम पे, NDP एट FC गिवन रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, उसके बेसिस पे आपको इनकम मेथड निकालना होगा। तो आप जो है यहाँ तक इसमें तीनों ऐड है, ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब उसको नेशनल इनकम बनाना है उसमें प्लस NFIA करते हैं, वो 10 ऐड कर दीजिएगा, तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, 810 करोड़, ठीक है। यही मतलब बस यही सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके बुक्स में या कहीं से भी, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस यही सारे ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखिए, सब इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप ये चीज़ समझिएगा तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, इसलिए मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वही सारी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आप यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश गिवन है, ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड गिवन है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन गिवन है, मतलब यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ना दे के उनके अंडर जितने चीज़ें आते हैं वो सब गिवन है। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग को पहले क्रिप निकाला CRIMP, तो ये वाले पोर्शन में ये तीनों चीज़ें आते हैं, ये तीनों मिलके आप मेरी पहली वीडियोस पुरानी वीडियोस देखिए, आपको समझ में आए, वहाँ पे मैंने सब एक समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, हर चीज़ सीक्वेंस में समझाया, बस अब उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि बच्चे कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। तो फिर क्या होगा, आपका इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा C, ठीक है, तो ये बन गया कंपनसेशन, ठीक है। अब यह ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें क्या है, अपना क्या क्या दिया हुआ है, RIP, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये तीनों इसमें ऐड होता है, तो आपका ये वैल्यू भी यहाँ से मैनेज हो गया। अब मिक्स्ड इनकम है वो है, तो आपको इन सब को फाइनली ऐड ही कर देना होता है, ऐड कर देंगे, NDP एट FC आ जाएगा, NDP एट FC आ जाएगा। मैंने अच्छे से सीक्वेंस में ये सारे समझा रखा है, आप इसको डिटेल में देखो, मैं आपको शॉर्टकट तरीका समझा रही हूँ कि आप क्वेश्चन को आप ऐसे ही देखो, यही सब चीज़ें ऊपर नीचे रहते हैं, आपको बस ढूंढना है, इस फॉर्म में लाना है, इसको ऐड करके NDP एट FC बनाना है, और नेशनल इनकम बनाने के लिए उसमें प्लस या माइनस जो भी गिवन आप NFIA कर दिया जाता है तो नेशनल इनकम बन जाता है। अब आपका ये वैल्यू निकल जाएगा यहाँ तक ऐड करके, ठीक है, और फिर प्लस NFIA कर दीजिए, ये क्या है 10 गिवन है, आपका निकल गया, सबको ऐड कीजिए 760 करोड़ आपका आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आखिरी क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। मैंने सारे टाइप्स आपको इनकम मेथड के बता दिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ बच्चे फंस सकते हैं, किस किस टाइप के हैं। अब यहाँ हम लोग ढूंढते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, ठीक है,
ये क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ही आता है, ठीक है, मतलब सी गिवन है, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी क्या है, आर गिवन है, ठीक है। इंटरेस्ट आई गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है, ठीक है। अब पी प्रॉफिट कहीं नहीं दिख रहा है, मगर प्रॉफिट के जितने भी टर्म होते हैं, डिविडेंड होते हैं, रिटर्न अर्निंग होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, या तो ये तीनों गिवन रहे, क्या इसमें से कोई एक गिवन है या दो गिवन, कुछ भी गिवन हो उसको पी में ही कंसीडर करते हैं। तो अब इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये पी आपका निकल जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका क्या निकल जाएगा, एन डी पी एट एफ सी, ये निकाल देगा आपका एन डी पी एट एफ सी, ठीक है। ये निकलेगा, उसमें प्लस एन एफ आई कर दीजिएगा नेशनल इनकम बनाने के लिए। ये मैंने सब समझाया कि डिविडेंड प्लस रिटर्न अर्निंग प्लस कॉर्पोरेट टैक्स 130 करोड़ आया, ठीक है। अब ये सब को जोड़ेंगे तो आपका सारा, जब इस सब चीज़ को जोड़ देंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा एन एन पी एफ सी आप निकालने के लिए इसे बस प्लस एन एफ आई कर देना है, जो कर देंगे। और ये इसको हम सब वैल्यू पुट किया, हमने ऐड किया और आपका आंसर क्या है, 940 करोड़ आपका आंसर आ गया। बस बच्चों यही सारे ट्रिक्स होते हैं, यही क्वेश्चन है मेथड के, इससे बाहर कहीं आने वाले नहीं है। बस यही ट्रिक्स टर्म बस याद कर लीजिए, बस नंबर आपके इधर उधर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेंगे। और मैंने आपको ये डिटेल में एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताया है, यही सब चीज़ के आगे पीछे ही होते हैं। थैंक यू। आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ अब एक्सपेंडिचर मेथड पे लेके आऊँगी। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।